Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, before starting my lecture, I would like to ask a few questions. So my first question is, what is the history of atom? Greek philosopher Democritus suggested that matter can be ultimately broken down into tiny particles that cannot be further divided. These particles were named as atom. My second question is, student, who is John Dalton and what is the statement of John Dalton atomic theory? John Dalton was an English school teacher and after a series of experiments concluded that all matter must be composed of tiny particles which are like solid balls and cannot further divided. My third question is, student, what are the main postulates of John Dalton atomic model theory? First postulate of John Dalton atomic theory is composition of matter. Matter is composed of small particles called atoms. Second one is indivisible particles. Atom is indivisible particle. Third one, atom cannot be created nor destroyed. Fourth one, atoms of particular elements are identical in size, shape and mass and also in other properties. Fifth is combination of atoms. Atoms of different atoms combine with each other in small whole number ratio. And the last one is chemical reaction. All chemical reactions are due to the combination or the separation of atom. My fourth question is, what is the history of Rutherford atomic model? In 1911, Rutherford performed an experiment to find number 1, arrangement of electrons and protons in an atom. Second, discover the nucleus of an atom. My fifth question is, what was the experiment setup of Rutherford atomic model? Rutherford bombarded gold foil with alpha particle from the radioactive source. The gold foil was surrounded by zinc sulfide fluorescent screen to detect the particles emitting from the gold foil. My next question is, what is the observation of Rutherford experiment? There were 3 observations of Rutherford experiment. He observed that some of the rays were undeflected and some were deflected while some of the rays bounced back. These are my questions. Now student, come to the today lecture. On the basis of observation of Rutherford experiment, he presented some main points about that experiment, which are called main points of Rutherford atomic model theory. So what are the main points of Rutherford atomic model theory? आज के लेक्चर में हम Rutherford atomic model theory के main points या postulate को डिस्कस करेंगे. पहला postulate, student, atom consists of positively charged
central portion that is called nucleus and it contains protons and neutrons. रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में हमारे पास एक पोर्शन होता है जिस पोर्शन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड से पहले हो चुकी थी, लेकिन एटम्स के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते कहाँ हैं ये किसी को आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले हमारे पास रदरफोर्ड एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास कहा कि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेंटर ऑफ एटम्स के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो नोट दिस पॉइंट, रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पॉइंट नंबर 2, electrons are revolving around the nucleus with very high speed just like planets around the sun. डी स्टूडेंट, इसने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बड़ी स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि सन के अराउंड हमारे पास बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड electrons revolve करते हैं। This is point number 2, or you can say that postulate number 2. The third postulate is the electron revolving around the nucleus will require centripetal force. The attractive force of the nucleus on electrons provides centripetal force to the electrons. याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर सर्कल में मूव कर रही हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है और यही अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम एंड द मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। इस पॉइंट का मतलब है स्टूडेंट कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बाकी एटम के, होल एटम के मुकाबले में बहुत छोटा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है और उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आपने फुटबॉल को सेंटर में रखा हुआ है, तो फुटबॉल को आप न्यूक्लियस कंसिडर करें और बाकी फुटबॉल ग्राउंड को आप पूरा एटम कंसिडर करें। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस बाकी एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत छोटा है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट 10 raised to the power minus 14 to 10 raised to power minus 15 meter. Point number 5, atom is neutral as the number of electron is numerically equal to that of protons. Dear student, यहाँ पे क्वेश्चन भी प्रोड्यूस होता है, why atom is a neutral particle? An atom is a neutral particle because the number of electrons which have numerically equal to that of protons, so that's why we can say that they cancel the effect of each other and as a whole atom become neutral. Okay, this is very important question for your board exam, that why an atom is a neutral particle. So the answer is क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारे पास नंबर में इक्वल होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल पार्टिकल्स है। पॉइंट नंबर 6, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। डी स्टूडेंट, किसी भी एटम का जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से होता है, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की वजह से किसी एटम का वजन होता है। डी स्टूडेंट,
Most of the mass of an atom is due to nucleus. Why? The reason is that protons and neutrons are approximately 1836 times heavier than electrons, so we can neglect the mass of electrons as compared to the number of protons and neutrons. So that's why we can say that the mass of an atom is due to the nucleus. Now student, these are some of the postulate, about 6 postulate of Rutherford atomic model. Now student, हम देखेंगे कि इन postulate के अंदर कौन कौन से postulate हमारे पास करेक्ट हैं और कौन से postulate हमारे पास गलत हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या शॉर्टकमिंग थी या क्या डिफेक्ट थे, उन डिफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला डिफेक्ट है स्टूडेंट हमारे पास, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था ये हमारे पास, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे सोलर सिस्टम से रिलेट कर रहा था। जैसा कि सोलर सिस्टम के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डी स्टूडेंट हमारे पास किसी एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन रदरफोर्ड ने हमारे पास एटम के पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉ ऑफ मोशंस को अप्लाई किया, जो कि हमारे पास एक डिफेक्ट से। ओके, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच इज एप्लीकेबल, जो कि हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर, जबकि हमारे पास एंड नॉट ऑन चार्ज बॉडीज, जो कि चार्ज बॉडीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। डी स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला डिफेक्ट था कि जितने भी हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है और ग्रेविटेशन के जो लॉज हैं ये हमारे पास अप्लाई होते हैं न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर, लेकिन रदरफोर्ड साहब ने इसको एटम्स के ऊपर, जो कि चार्ज पार्टिकल्स है, इसके ऊपर अप्लाई किया, जो कि हमारे पास एक डिफेक्ट है। सेकंड डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously. The electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it does not happen. पॉइंट नंबर 2 का मतलब है कि उस टाइम मैक्सवेल की एक थ्योरी थी जो कि हमारे पास ये बताती थी कि जब कभी भी कोई भी चार्ज बॉडीज़ किसी भी दूसरी चार्ज बॉडीज़ के अगेंस्ट रिवॉल्व करे तो उस चार्ज बॉडीज़ को जो रिवॉल्व कर रही है उसको कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करनी चाहिए, खारिज करनी चाहिए, और एनर्जी खारिज करते करते एक ऐसा टाइम भी आना चाहिए कि वो सारी एनर्जी ख़त्म करके उस दूसरी चार्ज बॉडीज़ के ऊपर गिर जाएं। लेकिन एटम्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन मसलसल एनर्जी खारिज करते हैं। मैक्सवेल ने यह कहा था कि एक चार्ज बॉडी अगर दूसरी चार्ज बॉडीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे तो उस चार्ज बॉडीज़ को एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए और रेडिएट करते करते एट द एंड उसको दूसरी चार्ज बॉडीज़ के ऊपर गिर जाना चाहिए। लेकिन या तो उस टाइम रदरफोर्ड ठीक था या मैक्सवेल ठीक था। तो डियर स्टूडेंट, एटम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रदरफोर्ड ने कहा था कि मैक्सवेल ने ये कहा था कि हमारे पास चार्ज बॉडीज़ अगर रिवॉल्व करे तो उस टाइम इसको उस बॉडीज़ के ऊपर गिर जाना चाहिए, लेकिन एटम्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर हमारे पास रदरफोर्ड साहब के पास नहीं था। सो दिस इज़ द सेकंड डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
The third defect is if electron radiate energy continuously, then continuous spectrum will be obtained, but actually line spectrum is obtained. Dear student, जब कभी भी एक पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो हमारे पास ऑब्टेन होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एटम का जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। डी स्टूडेंट, ये स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। डी स्टूडेंट, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब कभी भी आप वाइट लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो आपके पास वो रेज़ जो होती हैं, वाइट लाइट जो होती है, सनलाइट, वो हमारे पास सेवरल डिफरेंट कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है। जैसा कि ये आपके पास सनलाइट को आपने प्रिज्म से पास किया तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट होगी। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर on the basis of increasing or decreasing order of frequency is called spectrum. ये तो होता है हमारे पास स्पेक्ट्रम। Arrangement of waves spread out according to increasing or decreasing order of frequency is called spectrum. किसी भी वेव्स का स्प्रेड आउट हो जाना या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो होते हैं स्टूडेंट, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के ऑब्टेन किए जाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट स्पेक्ट्रम्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जब आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। लेट्स सपोज इन दो कलर्स के बीच, इन दो कलर के बीच और इन दो कलर के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री आपको नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। मतलब ब्लू के बाद पिंक स्टार्ट हो रहे हैं और पिंक के बाद ग्रीन स्टार्ट हो रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ तक इनकी बाउंड्री है, मतलब इनके बीच में नो क्लियर कट बाउंड्री है, तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लियर कट बाउंड्री दिखाई दे रही है दो कलर्स के बीच में और इन दो कलर के बीच में और इन दो कलर के बीच में, तो इस किस्म के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। बहरहाल इसको आप एफएससी के अंदर डिटेल से देखेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है और लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होते हैं। आते हैं अब डिफेक्ट्स की तरफ। डी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि एटम्स अगर कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है तो इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए, मतलब ऐसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए इसका। लेकिन एटम के स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो दिस इज द थर्ड डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी, और यू कैन से दैट दिस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। शॉर्ट कमिंग का मतलब कि इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। फोर्थ इज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। इसका जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, ये कोई एटम एक बॉन्ड बनाते, दो बनाते, तीन बनाते, एटम की इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो दिस इज आल्सो द शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। पॉइंट नंबर 5 इज इट गिव नो आइडिया और एक्सप्लेनेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, स्पेस कैसा होता है, इसने शेल, ऑर्बिटल या सब शेल के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। सो दिस इज आल्सो द शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। एंड द लास्ट शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी इज इट गिव नो आइडिया अबाउट द शेल और ऑर्बिट। इसका जो एटॉमिक मॉडल था ये हमारे पास शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सब एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन नहीं कर सका, इसके बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया। तो ये भी हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी का एक शॉर्ट कमिंग है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स और उसके डिफेक्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे।
This is one of the most important topic that write down the shortcoming of Rutherford atomic model theory. आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस पे क्वेश्चन आता है. लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स या इसके एक्सपेरिमेंट सेटअप के ऊपर नोट लिखें तो इसके ऊपर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया postulate of Rutherford atomic model theory. So, first one is nucleus, or you can simply say that atom consists of positive charge portion that is called nucleus, which contain protons and neutrons. Point number 2, revolving electrons. Electrons are revolving around the nucleus with very high speed, just like planet around the sun. Point number 3, centripetal force between electron and protons. The electrons provide the attractive force of the nucleus on electrons provides centripetal force to the electrons, due to which electron revolving around the nucleus. D, size of nucleus. The size of nucleus is very small as compared to the size of atom, and most of the volume occupied by the atom is empty. E, neutral particles. An atom is a neutral particles because the number of electrons is numerically equal to that of protons. F, mass of the atom. Nucleus is responsible for the mass and energy of atom. Second main point is the defect of Rutherford atomic model. A, based on the law of motion and gravitational. This student, Rutherford atomic model is based on the laws of motion and gravitation, which is applicable on neutral bodies and not on charged bodies. Second, B is Maxwell theory. According to Maxwell theory, electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously, but electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it does not happen. So this is also the shortcoming of Rutherford atomic theory. C, spectrum, continuous versus line. If electron radiate energy continuously, so continuous spectrum should be obtained, but actually line spectrum is obtained. This is also the shortcoming of Rutherford atomic theory. D, chemical properties of element. It does not provide any explanation about the chemical properties of element. E, arrangement of electrons. It gives no idea about the arrangement of electrons around the nucleus. F, it gives no idea about shell, subshell and orbitals. So dear student, ये थे हमारे पास आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डियर स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स और इसके डिफेक्ट्स को वर्कशीट के ऊपर लिखना है. थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.